evening, everyone. I'm Ruchita, your host for today. Welcome to today's session on gut health and how it can prevent and even reverse multitudes of lifestyle diseases. Did you know why our gut health is called our second brain? And that when we eat also impacts our gut health? And that there are various indicators of gut health, such as the quality of our sleep. To cover this and much, much more, we have two esteemed speakers with us tonight. It is my absolute honor to invite Farooq Tarapur to start the session. He's an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 plus years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. He's a flag bearer on this journey with the mission Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Without further ado, over to you, Farooq. Thank you, Ruchita, and good evening, everyone. Welcome to this exciting Monday session. I hope that the Diwali sweets are tapering off and you stop indulging in that. And I think, many times people ask me this question that how often should we do a gut reset? And this is one special occasion where you need to do it. Now, the technical answer to this is that it totally depends upon the balance of good bacteria and bad bacteria in your gut, right? But how often you need to do a gut reset depends upon how much you are, how disciplined in your approach towards your gut balance, how disciplined you are in your approach to, seeing every day when you got food in your plate as to, what kind, this food, is it responsible for increasing my good bacteria or bad bacteria? So depending upon that, you need to generally, do a gut rebalance. But when you come across these kind of festivals where people do get tempted a little bit to eat that little extra, then it's a good time, to start a gut reset program for about 10 days, and try and get your gut balance sorted out. I really encourage you to sort of, take this part very seriously, because this is something that will really have a huge impact on your overall holistic health. Try and understand one thing, that if your gut health is not good, okay, you're not going to die tomorrow, but it will lead to a multiple of lifestyle problems that you can't even imagine. But if your gut health is good, then you're lowering the risk of those lifestyle diseases dramatically. And hence it's extremely important, to remain focused on this subject. Most of the time, all the inflammation, that you have, this can be easily sorted out by some form of the right amount of nutrition. And I would really recommend that you read, two books. What your doctor does not know about nutritional supplements might be killing you, by Dr. Ray Strand, and Death by Prescription. These are two amazing books, where how he describes that how critical knowledge about nutraceuticals is, and supplementation is. The right knowledge of supplementation can really put you on the right path, and ensuring that you're, in your, journey towards good health, your gut reset is also well looked after. So take this topic a little bit seriously, okay? Start off with the gut reset program from tomorrow as a fresh start. We will be putting up on the WhatsApp group several do's and don'ts about gut reset, and hope that you manage to, balance out the good and the bad bacteria so that you stay away from lifestyle diseases. Okay. Today you're going to listen from Manoj, who had absolutely no concept about what good gut health is. And he
took it upon him to, learn a lot about it, and has made a massive transformation, in his health. When you look at his health transformation journey, it is amazing that what he has achieved, what he was and what he is today, is absolutely unbelievable. So listen to Manoj, very carefully, follow what he has got to say, follow what this program has got to say, and ensure that you all have good health. So over to you, Manoj. Thank you, Mano. Thank you, Farooq. Thank you very much. Ruchita, are you ready with the slides? Meanwhile, I'll just start with अभी फारूक जी ने बोला कि मनोज को पता ही नहीं तो व्हाट इज गुड हेल्थ, गुड गट वाज एंड गुड गट इज, अच्छा पेट क्या होता है, उन्हें मनोज को नहीं पता था और मुझे सच में पता नहीं था। और जब पता चला तब ये पता चल गया कि मैंने अपने गट को गट नहीं रखा था, गटर बना के रखा था। ओके, तो अगर आप लोगों के साथ भी ये सिचुएशन है कि नहीं है, अभी आप जो स्लाइड देखेंगे और जो सुनेंगे थोड़ा बहुत मुझसे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अपने 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 गट को गट रखा है या गटर बना के रखा है। ओके, सो व्हाट इज गट? गट बेसिकली अपना पूरा एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको आप बोल सकते हो। मुंह से खाना खाने से लेके जब हम सुबह स्क्रीट करते हैं, निकाल देते हैं जो बचा खुचा है, जो काम का नहीं है हमारे बॉडी के लिए, ये पूरे सिस्टम को हम गट बोल सकते हैं। ओके, नॉर्मली गट को हम, कोई लोग सिर्फ ये समझते हैं कि सिर्फ पेट है जहाँ पर हमने खाना डाला, खाना खाया और खाना जाके पहली बार जमा हो गया, उसको हम गट बोलते हैं। बट नहीं, पूरा सिस्टम है जिसको आप गट बोल सकते हो। आप अगर स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आप जब लेफ्ट वाले अगर सिस्टम को आप देखेंगे, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, कि हम किस तरह से खाना खाते हैं और पचाते हैं, और फिर बचे हुए जो वेस्ट है उसका क्या करते हैं, आपको सबको पता है। तो मुंह में जैसे हम पहली बार खाना डालते हैं, वहां से लेके आपकी खाने की नली, आपका पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, गाल ब्लैडर, पैनक्रिया, लीवर, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो इसमें आपको कुछ ज्यादा हम साइंस नहीं बताना चाहते हैं कि आपको विज्ञान में एक्सपर्ट होना है या फिर आपको अपने शरीर के बारे में एक्सपर्ट होना है, लेकिन जरूर आपको इतना जरूर पता चल जाए कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो जो टेक्निकल शब्द होंगे उसको आप इग्नोर करके भावनाओं को समझिएगा, और जब आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है, कैसा है। तो ये गट है क्यों इम्पोर्टेंट? गट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसको पचाने का काम, खाने को तोड़ के पचाने का काम और उसके न्यूट्रिएंट्स को हमारे शरीर में पहुंचने का काम गट के थ्रू ही होता है। जो भी बचा कुचा रहता है उसको हम निकाल देते हैं वेस्ट के तौर पे अपने शरीर से। हमारे गट के अंदर कुछ माइक्रोबायोम्स होते हैं, ये उनका घर है ना। अभी आप बोलोगे माइक्रोबायोम्स क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ी आगे चर्चा करेंगे, थोड़ी देर में अगले स्लाइड से थोड़ा। गट हमारा हार्मोन प्रोडक्शन भी करता है ना। हार्मोन क्या होता है बेसिकली, सिंपल समझ जाइए, तो ये आपके मूड को मैनेज करता है। आपको खुश रहना है तो एक पर्टिकुलर हार्मोन है जो आपके शरीर के किसी अंग से निकलेगा। आपको दुखी रहना है, आपको रोना है, आपको स्ट्रेस में रहना है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, ये सब हार्मोन्स डिसाइड करते हैं। तो ये बनाने का काम भी गट का है ना। तो इतना समझ जाइए। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हम जो थर्ड नंबर पे जो पढ़े थे, थर्ड वाला जो पर्पल कलर में है, गट माइक्रोबायोम्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये होते क्या है गट माइक्रोबायोम्स? गट माइक्रोबायोम्स बेसिकली ये हमारे पेट में और हमारी आंतों में रहते हैं। ये हमारे खाने पचाने के लिए काम आता है, खाना खाना नहीं पचाने के लिए भी काम आता है ना। तो यही है जो आपको अगर जुलाब या उल्टी हो रहा है तो इन्हीं के कारण से हो रहा है, अच्छी तरह से पच रहा है तो भी इन्हीं के कारण से हो रहा है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। हमारे बॉडी का जो टोटल सेल है उसका 10 गुना तो सिर्फ हमारे इन जो माइक्रोबायोम्स हैं, जो आप इसको कीटाणु या तो विषाणु बोल सकते हो, बहुत छोटे दिखते ही नहीं है, आपको आंखों से नहीं दिखेंगे, है ना। क्योंकि अगर मैं उनकी क्वांटिटी बताऊंगा, ये आपके बॉडी के अंदर तकरीबन 100 ट्रिलियन होते हैं, और 5,000 अलग अलग जात के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं। और
100 ट्रिलियन से ज्यादा होते हैं, आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन उन सब का अगर आप टोटल करोगे वजन, तो तकरीबन 2 किलो निकलेंगे। इमेजिन करिए, आपके बॉडी वेट का 2 किलो तो सिर्फ वो है जो आपके मूड को और जो आपके शरीर के लिए सारा काम कर रहे हैं आपके लिए। ओके, तो ये कैसे हो, क्या होते हैं, तो बेसिकली इनका काम क्या है? इनका काम बेसिकली ये है कि जो भी आप खाना खाते हो उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट करना। जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब रास्ता है जहां से आपका खाना पूरा 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 खाना जो चलता है ना, खाने से लेके निकालने तक, इस पूरे ट्रैक को सही सलामत रखना, ये इसका काम। इसका काम मतलब माइक्रोबायोटा, जो हम अब खाली ये ध्यान रखिएगा कि हम उन कीटाणुओं, जीवाणुओं, विषाणुओं की बात कर रहे हैं या फिर उन बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं। आप सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप माइक्रोबायोटा को याद नहीं रख सकते तो, है ना, वो कीड़े जो आपके पेट के लिए जरूरी है, अब एक कीड़ा भी बोल सकता हूँ, है ना, लेकिन जरूरी है, जरूरी नहीं भी है, दो अलग अलग टाइप के, आगे आएंगे हम उसमें। ये आपके खाने पचाने का काम करते हैं, हेल्प करते हैं। ये जो आपका पूरा खाने का ट्रैक है, मतलब आपका मुंह, खाने की नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, ये सारी चीजों को, जो वॉल है इनका, मतलब इंटरनल वॉल, इसको प्रोटेक्ट करना इनका काम है। इससे आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। अभी आपको पता चलेगा कि इम्यूनिटी के लिए कितने जरूरी है। इम्यूनिटी का मतलब सब शायद सबको पता होगा कि रोग प्रतिरोधक शक्ति। अगर आपके बॉडी के अंदर कुछ भी अगर गलत चीज चली जाती है जो आपको बीमार कर सकती है, उससे फाइट करने के लिए जो आपके बॉडी के अंदर ताकत है उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ओके, बॉडी के अंदर अगर हम कुछ चीज गलत डाल दें तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए यही माइक्रोबायोटा काम आते हैं। ओके, और यही माइक्रोबायोटा शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं जो खाना पचाने के लिए काम करते हैं। अगेन आप देखिए कितना काम है, कितना इंपॉर्टेंट काम। अब ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक होते हैं बैक्टीरियोइडेट्स और दूसरा है फर्मीक्यूटिस। अब सिंपल में समझिए, एक हरे कलर में दिखाया है, एक लाल कलर में दिखाया है। शब्दों को याद रखने की जरूरत नहीं है। हरा वाला आपके लिए बहुत अच्छा है, लाल वाला आपके लिए बहुत खराब, बराबर है, लेकिन ये दोनों होंगे आपके पेट में। हरा वाला अगर रहा आपके, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर हरा वाला आपके पेट में ज्यादा रहा, अच्छी मात्रा में रहा, आप वेट लॉस में आपको मदद करें। और अगर लाल वाला आपके पेट में ज्यादा रहा, वेट गेन में आपको काम करेगा, मतलब आप मोटे बन सकते उसके वजह से। ओके, तो हरा वाला बैक्टीरिया आपके लिए अच्छा है, लाल वाला बेकार है। नाम सामने लिखा है, आप याद रख सकते हो अगर आपको याद रखना है तो। अच्छा बुरा सिंपल शब्दों में अगर आपको याद रखना है, आप रख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा कि कितना होना चाहिए हमारे पेट में। जब दोनों होता है तो कितना कितना होना चाहिए। आपके बॉडी के लिए अच्छा है 85% अच्छा वाला और 15% बुरा वाला। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अगर आपके पेट में, मतलब आपके पूरे गट में 85% अगर अच्छे बैक्टीरिया हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है और ये होना चाहिए। और 15% बैड तो रहेंगे ही रहेंगे, आप उसको कुछ कर नहीं सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते हो उसको। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम उधर है कि ये रिवर्स है। कई लोगों के पेट ज्यादा है बैड बैक्टीरिया, कम है गुड बैक्टीरिया। लेकिन अगर गुड बैक्टीरिया अगर आपके पेट में ज्यादा हुआ तो आपको फर्क कहाँ पड़ता है? ये आपके स्किन के लिए अच्छा है, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से उसको पचाते हो, न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में जाते हैं तो आपके स्किन में दिखते हैं। स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ओके, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपका मूड और स्लीप को मैनेज करता है ना, स्ट्रेस मैनेज करता है, ये आपके वेट को कंट्रोल करता है, ये आपके जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छा है, ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, ये आपके ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है। और अगर एक कंपेरेटिव चार्ट अगर आपको देखना है कि अगर हेल्दी गट मतलब वो कि जहाँ पे हरा वाला ज्यादा है, और अनहेल्दी गट वो जो आप जहाँ पर लाल वाला ज्यादा है। यहाँ पे ऑरेंज कलर से आपको दिखाया गया है अनहेल्दी गट, और हेल्दी गट दिखाया है ग्रीन वाले से। अब फर्क देखिए, आप कब अगर गट हेल्दी है, आप कुछ भी खाओगे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छे से, मतलब मुसीबत से मुसीबत वाली चीज को पचा लेगा, छोले या राजमा
कई लोगों को नहीं पचता है, लोग बोलते हैं हमें गैस हो जाता है, हमें ये हो जाता है, हमें वो हो जाता है। कुछ नहीं, मतलब आपका गट में गड़बड़ है, इसलिए नहीं हो रहा अच्छा, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। बहुत लोगों को खाने के बाद ब्लोटिंग होती है। ब्लोटिंग मतलब अपच वाला सिस्टम, है ना, स्टूल पास नहीं होना, गैस ज्यादा हो जाना। लेकिन अगर आपके गट अगर अच्छा है तो आपको वो सब नहीं होगा। कई लोगों को खाना खाने के बाद अच्छा नहीं फील होता है, अनइजीनेस फील होता है, बिकॉज आपके बुरे बैक्टीरिया अंदर ज़्यादा है। और कभी कभी आपको खाना आके बहुत अच्छा लगता है और आपको एकदम एनर्जी लगता है आपको खाना खाने के बाद, क्योंकि आपके अंदर अच्छा बैक्टीरिया है। बुरा बैक्टीरिया रहेगा आपका डल स्किन रहेगा, अच्छा बैक्टीरिया ज़्यादा रहेगा आपकी स्किन ग्लोइंग रहेगी। बुरा बैक्टीरिया रहेगा आपको नींद में गड़बड़ होगी, बुरा बैक्टीरिया रहेगा नींद अच्छी आएगी ना। इसको आप इमेजिन करिए ना, जिस दिन आपका पेट में गड़बड़ होगा, क्या आपको अच्छी नींद आएगी? बिल्कुल नहीं। एक आदमी बता दे जो बोले मेरे पेट में गड़बड़ था और आपको अच्छी नींद आई, बिल्कुल नहीं आएगी। ओके, तो इस तरह से कई सारे आपको डिफरेंस मिल जाएंगे अच्छे गट के और बुरे गट के। तो ये होता कैसा है ना, हम किस तरह से अपने अच्छे गट को गटर बना देते हैं या फिर बुरे बैक्टीरिया बढ़ा देते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो उसके ये सारे कारण है: अल्कोहल, शराब, रिफाइंड शुगर, कैफीन, तेल और सैचुरेटेड फैट्स, प्रोसेस फूड। ना, प्रोसेस फूड का मतलब सिंपल ये कि जो आपको पैक करके मिलता है ना, एकदम ग्लॉसी पैकेजिंग के साथ। कल मुझे मेरे घर पे एक गिफ्ट आया दिवाली का, आई वॉज सरप्राइज्ड। 200 रुपए का माल, 1000 रुपए का पैकिंग, खाने में सब अगर न्यूट्रिशन उसका वैल्यू पढ़ो तो सब गड़बड़ था, लेकिन दिखने के अंदर बहुत अच्छा था, दिखने के लिए बहुत अच्छा था। बट वो प्रोसेस था, पैक किया हुआ, बना हुआ फैक्ट्री में, उसके अंदर कलर, आर्टिफिशियल कलर ऐड किए हुए हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड किया हुआ है, उसके अंदर फ्लेवर्स ऐड किए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें उसके अंदर। प्रोसेस फूड जो आपको रॉ मिल जाए सबसे बढ़िया है, सब्जी मिल रही है आपको, अनाज मिल रहा है, आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। डेयरी प्रोडक्ट आपके लोग आपका गट रिसेट, गट को गटर बना सकता है। ओके, मीट है वो बना सकता है। और अगर आपको नींद बराबर नहीं आ रही तो उससे भी मिल। तो नींद, पेट, पेट और नींद, इसका एकदम कनेक्शन बहुत बेकार है, बहुत सही भी है, बहुत बेकार भी है। तो आप किस तरह से अपने गट को अच्छे तरह से बैड गट को गुड गट में कन्वर्ट कर सकते हो? बेसिकली चार चीजें: हेल्दी फूड खाइए। अब हेल्दी को हम बेसिकली न्यूट्रिशियस बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशियस नहीं है इसके लिए हमको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी फूड बोलने मतलब वही प्रोसेस नहीं खाइए वगैरह वगैरह, आगे बात करेंगे उसके लिए। एक्सरसाइज करिएगा, उसके बाद थोड़ी बात करेंगे। और आपकी लाइफ में थोड़ी परिवर्तन लाना पड़ेगा, है ना, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो, नींद अच्छी आए आपको। अब हम देखेंगे इन इन चीजों के ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात कि गट रिसेट होता क्या है ना। तो बेसिकली वही है जो आपके पेट में अगर, गट में अगर ज्यादा अगर बैड बैक्टीरिया है और अच्छे बैक्टीरिया कम है, उसको रिवर्स करना है। मतलब ये कि अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाने हैं और बुरे बैक्टीरिया कम करने हैं। इसी को हम बोलते हैं रीसेट करना, है ना। जब भी हमारा फोन में कुछ गड़बड़ होता है तो हम रीसेट बटन दबाते हैं या फिर बंद करके वापस चालू करते हैं कुछ देर के लिए। उसी तरह से हम कंप्यूटर में भी कभी कुछ गड़बड़ी आ जाए, कुछ खामी आ जाए तो हम रीसेट कर देते हैं उसको, ताकि वो जो प्रॉब्लम है निकल जाए। छोटी मोटी प्रॉब्लम, ये बेसिकली छोटी मोटी प्रॉब्लम है, अगर आप उसको ध्यान दो तो सब ठीक हो सकता है। इसी को हम गट रिसेट कहते हैं। ये गट रिसेट का पीरियड ना 10 दिन का है। अब कई लोग बोलते हैं 10 दिन क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ कहा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। 10 दिन इसलिए क्योंकि पूरे सिस्टम को खाली होने के लिए ना, पूरा सिस्टम मतलब मुंह से लेके खाना निकालने तक, भारत है ना, वेस्ट निकालने तक तकरीबन 7 से 10 दिन लगते हैं। मतलब अगर आपने आज कुछ गलत खाया और अगर आज 4 तारीख है, 13 से 14 तारीख आपके बॉडी से पूरा साफ होने के लिए टाइम लगेगा, नॉर्मल लाइफ। तो आप इमेजिन करो, अगर आप 10 दिन तक कभी बीच में वापस खा लिया तो फिर वहां से 10 दिन करना पड़ेगा। इसीलिए 10 दिन के लिए, 10 दिन का टाइम लगता है गट रिसेट करने के लिए।
ये 10 दिन के अंदर आपको कुछ कुछ चीजें, अगर आपने सही तरह से इसको फॉलो किया तो कुछ कुछ आपको दिखेंगे कि बॉडी के अंदर बदलाव आ रहा है। टेम्परली आपको ऐसा लगेगा यार ये तो और बेकार होते जा रहा है, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी आपको आदत नहीं है, आपके बॉडी को आदत नहीं है, इसलिए आपको ये सारी चीजें जो भी दिखेंगी वो दिखेंगी। या तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, आपको लगेगा कुछ गड़बड़ हो रही है, उसके लिए मैं कुछ और कर लूँ। कोई करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। क्योंकि जिस तरह से ट्रेन जब चलती है और एक पटरी से दूसरी पटरी पे झटका लगता है ना, वो झटका नॉर्मल है। तो वैसे इसके अंदर भी कुछ झटके आपको लग सकते हैं, तो झटके को सहिएगा। एक टाइम आएगा जब आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, तो उसके हिसाब से आपकी बॉडी अपने आप को ढाल लेगी, तब आपको सब कुछ ठीक लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? इसके अंदर ये चीजें हैं कि आपको एक आदत बन जाएगी आस्ते आस्ते, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। मतलब ये कि आप अपने पेट को सुनने लग जाओगे, है ना, वो क्या बोलना चाह रहा है आपको, वो आप सुनने लग जाओगे। आपको अपने वो चीजों को अपने लाइफ से निकालना पड़ेगा जिससे आपका गट रिसेट, गट गट खराब हो रहा है ना, गट गटर बन रहा है, वो आपको निकालना पड़ेगा। आपको आपके स्ट्रेस के लिए ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपने कुछ आदतों को बदलाव लाना पड़ेगा, कुछ अच्छी आदतें डालनी पड़ेगी, खाने में, सोने में, एक्सरसाइज में, जो भी है ना। और बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। सर्काडियन रिदम आपको समझना पड़ेगा और उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। सर्काडियन रिदम मैं जब ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप आते रहिए, सुनते रहिए। इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है जो हम बताएंगे, पूरा प्रेजेंटेशन उसके ऊपर। आपको वहां पता चलेगा कि सर्काडियन रिदम होता क्या है। आपको स्लीप को रिसेट करना होगा, क्योंकि स्लीप उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, ये सारे कंपोनेंट हैं गट रिसेट के। अब है गट रिसेट के 4 आर। 4 आर वो है रिमूव, रिप्लेस, रीबैलेंस और रीसेट। मतलब कुछ चीजें आपको निकाल देनी है अपने लाइफ से, कुछ चीजों को लाना है उसके जगह पे, जो आपने निकाल दिया उसके जगह पे। कुछ चीजों को आपको बैलेंस करना है ना, अच्छा बुरा तो सब ठीक ठाक करने के लिए। और कुछ चीजों को आपको रीसेट करना है। तो बेसिकली रिमूव क्या करना है आपको? कार्बोहाइड्रेट और स्टार्ची फैट, सैचुरेटेड फैट, सॉरी। ओके, इन चीजों को निकालना है। और ऐड क्या करना है आपको? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। देखो ये सब टेक्निकल टर्म है, इसके और सब डिटेल मिलेगा, इसीलिए हम बोलते हैं सिर्फ एक बार आने से कुछ नहीं होता। ओके, लोग आजकल ना सिर्फ आधे मिनट की रील एक बार देखते हैं और सोचते हैं कि हमको सब मालूम पड़ गया। गलत है। यहाँ पर आइए, सुनते रहिए, तो आपको पता चलता रहेगा कि और क्या क्या चीजें, और क्या क्या चीजें, और क्या क्या चीजें। हम आपको ये नहीं बोला कि आप एक्सपर्ट बन जाइए, बट एटलीस्ट उतना नॉलेज आपको मिल ही जाएगा कि जो आपके लिए ठीक रहेगा। आप अपने लिए और अपने परिवार की जिंदगी को बदल सकते हो सेहत के थ्रू। ओके, आपको रीबैलेंस करना है। रीबैलेंस क्या करना है? जो आपके बॉडी के अंदर जो गुड बैक्टीरिया बैक्टीरिया है, जो खराब ज्यादा है और अच्छा कम है, उसको उल्टा करना है, तो उस तरह से बैलेंस करना है, वो आपको सिखाया जाएगा। आपके बॉडी को एक रीसेट करना है जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऊपर बढ़ जाए। वो आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन से होगा। रीबैलेंस जो आपका होगा वो फाइबर और प्रीबायोटिक से होगा। इसके ऊपर भी थोड़ा और हम चर्चा करेंगे आगे। हल्दी गट के लिए जो अच्छे टिप्स हैं वो 3-4 आप फिलहाल देख सकते हो। आपको हम होल ग्रेन खाने की सलाह देंगे ना। अभी होल ग्रेन मतलब ये नहीं कि आप गेहूं लीजिए और कच्चा चबाइए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, नॉर्मली लोग आप देखो, हम बोलेंगे मैदा छोड़ दो, है ना। कई लोग गेहूं पिसा के क्या करते हैं, छानते हैं और जो ऊपर जो पड़ा रहता है, जो बच जाता है, उसको फेंक देते हैं। एक्चुअली वही एक फाइबर है जो आपके बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हम आपको बताएंगे, वो खाइए, मैदा मत खाइए, रिफाइंड शुगर मत खाइए, उसके जगह कुछ और खाइए, है ना। रिफाइंड दाल मत खाइए, उसके जगह कुछ और खाइए, ज्यादा पॉलिश दाल मत खाइए, है ना। ये सब खाइए। तो ये आपको बोलेंगे। आपको कहा जाएगा कि प्लांट बेस्ड फूड खाइए। हम नॉनवेज बिल्कुल 10 दिन के लिए बंद करने बोलेंगे आप। ओके, तो जिससे आपको ज्यादा अच्छा विटामिन, ज्यादा अच्छा प्रोटीन, ज्यादा अच्छा फाइबर मिले। आपको फ्रेगमेंटेटेड फूड खाने के बारे में बात करेंगे। फ्रेगमेंटेड मतलब ये कि जैसे दूध का दही बना दिया, एक जस्ट एक एग्जांपल है। या फिर जैसे हम आटा, डोसे का आटा को रात को पीस कर देते हैं, सुबह तक वो फूल जाता है, तो उसके अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरिया आ जाते हैं, है ना। तो उसके बारे में
आपको बताया जाएगा और वो आपको यूज करने कहा जाएगा। आपको अवॉइड करने कहा जाएगा कुछ ड्रिंक्स जैसे कि अल्कोहल वगैरह या फिर अपने शुगरी ड्रिंक। ओके, ये सब बंद करने कहा जाएगा। आपको कहा जाएगा कि आप पानी ज्यादा पीजिए, उसका आपको इम्पोर्टेंस समझा जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, कि आपको पानी पीना क्यों जरूरी है, आपके बॉडी के लिए क्या क्या मदद करता है, किस तरह से काम करता है, कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, ये आपको इनकरेज किया जाएगा, ये आपको बताया जाएगा कि क्या करना है पानी पीने के लिए बॉडी को, ताकि आप हाइड्रेट रखो। उसके फायदे नुकसान, कब करना है, कैसे करना है, वो आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट, आपको कहा जाएगा कि आप फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। ओके, ना फिजिकल एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज ही बोल सकते हैं आप सीधा। आप एक्सरसाइज कीजिए, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। अब अगर आप देखोगे ये बट गेट है कि जो पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी डाइवर्सिटी को बढ़ा देता है, मतलब अच्छे अच्छे बैक्टीरिया को और बढ़ा देता है, ज्यादा बैक्टीरिया अच्छे होने लगते हैं आप। ओके, आपको खुश रहने वाला जो हार्मोन है वो बढ़ाना चालू कर देता है, आपके पोस्चर को इम्प्रूव करता है, आपके वेट को मैनेज करता है, जो कि हमने पहले आपको बता ही दिया है। आपके स्ट्रेस लेवल को थोड़ा कम करेगा। अभी आप उसको आप समझिए कि किस तरह से इम्पैक्ट करता है गट हेल्थ। अगर आपका स्ट्रेस, आपने किसी को देखा है क्या पेट में गड़बड़ है और दिमाग शांत है? बिल्कुल नहीं। इसको आप उल्टा करिए। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो उनको बहुत टेंशन आता है, उनकी तबीयत खराब होने लगती है। इसका मतलब ये है कि वो टाइम पे उनको उनकी इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है उस वक्त। ओके, तो अगर आपको स्ट्रेस है तो किस तरह से आपके गट हेल्थ को देखो ये तकलीफ देता है, परेशान करता है। आपकी बैड बैक्टीरिया एक तो बढ़ने लग जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। अब ये इन्फ्लेमेशन अगर कोई नया है तो शायद उसको पता नहीं होगा, बट बेसिकली समझ जाइए कि अंदर आपके बॉडी के अंदर मारा मारी चालू है, और अगर कहीं पे भी कुछ मारा मारी चालू होती है वहाँ की जमीन में बहुत नुकसान होता है। तो आपके शरीर अगर जमीन है और वहां पे अगर अंदर मारा मारी हो रही है कुछ चीजों के साथ, अच्छे बुरे लोगों की, तो आपके लिए खराब है। ओके, इसको आप आस्ते आस्ते और समझिएगा। नेक्स्ट, अब ये जो गट रीसेट है इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट और कब इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि जब भी हम रात को सोते हैं तो सोने के बाद क्या होता है हमारे शरीर के साथ, सोने के बाद क्या होता है, सोते टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे रिपेयर वर्क होता है बॉडी के अंदर। रात को हमने खाना खाया होता है, सुबह तक रिपेयर में बहुत सारा प्रोटीन यूज हो चुका होता है। ओके, सुबह आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो चुका होता है, आपकी इंसुलिन लेवल थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई होती है, क्योंकि उसको मालूम है कि अभी खाना आने वाला है पेट में, क्योंकि भूख लगने वाली है आस्ते आस्ते थोड़ी देर में। तो इसी को कवर करने के लिए अगर आप देखेंगे तो हमने गट हेल्थ के लिए तीन चीज़ों के ऊपर फोकस किया है। एक है प्रोटीन, दूसरा है फाइबर और तीसरा है प्रोबायोटिक। प्रोटीन ये रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए आता है काम गट रिसेट में। फाइबर जो है ये आपकी, फाइबर जो है बेसिकली आपके जो गुड बैक्टीरिया है उनके खाने के लिए काम आता है। और जो प्रोबायोटिक्स है ये बेसिकली जो अच्छे बैक्टीरिया है उनकी पॉपुलेशन और बढ़ाने के लिए काम आता है। तो इस तरह से इन तीनों को हमने इंक्लूड किया है। अभी मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि प्रोटीन का क्या इसके अंदर यूज है। नेक्स्ट स्लाइड। प्रोटीन बेसिकली अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपके गट हेल्थ के लिए अलग अलग तरीके से काम आते हैं। ये जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये जो गट का ट्रैक है ना, जहाँ जहाँ से खाना जाता है, पास होता है, उसके उसको बैरियर के रूप में सपोर्ट करता है, उसके जो अंदर की वॉल होती है उसको। ओके, ये अपना जो वेस्ट होता है उसको सिक्रीट करने के लिए मदद करता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए काम करता है। ये आपका इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए काम करता है। तो ये अलग अलग तरीके के फायदे हैं प्रोटीन के। अगर आप अगले प्रोडक्ट में जाएंगे जो हम फाइबर की बात करते हैं, तो बेसिकली फाइबर क्या होता है? फाइबर बेसिकली प्रीबायोटिक, डाइटरी जो प्रीबायोटिक्स है
प्रीबायोटिक्स बेसिकली ये जो अपने अच्छे बैक्टीरिया हैं उनके खाने का काम करता है, उनके लिए खाना है वो। ओके, इसको अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए पूरा काम करता है, उनको हेल्दी बनाता है, बुरे बैक्टीरिया को सपोर्ट नहीं करता है। तो इस तरह से प्रीबायोटिक काम करता है। अगर हम आगे जाएंगे तो जो फाइबर है दो टाइप के होते हैं, सोलेबल और इनसोलेबल। सोलेबल वो फाइबर होता है जो पानी में पूरा घुल जाता है। ओके, और ये बेसिकली जो प्रीबायोटिक जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनके खाने के काम आता है। और जो इनसोल्यूबल होता है पानी में नहीं घुलता, वो बेसिकली क्या करता है कि जो आपका स्टूल होता है उसको बल्कि बनाने में काम आता है ताकि आसानी से बॉडी से बाहर आ जाए। ओके, तो इस तरह के हैं। अगर आप देखेंगे कि प्रोबायोटिक क्या काम करता है, तो प्रोबायोटिक बेसिकली जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उन्हीं की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए काम करता है, जिसके वजह से वही सेम बेनिफिट्स, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, एंजाइम अच्छे अच्छे बढ़ेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, अच्छे बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे तो बुरे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर आप ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगे, ज़्यादा खुश महसूस करेंगे आप, है ना। ये सारी चीज़ें तो अब बेसिकली आपको कहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये एक प्रोडक्ट है जो न्यूट्रीलाइट का है, प्री एंड प्रोबायोटिक। तो इसके अंदर दोनों है, प्रीबायोटिक भी है और प्रोबायोटिक भी है। प्रीबायोटिक जैसे कि आपको मैंने बताया कि गुड बैक्टीरिया का खाना है, और प्रोबायोटिक बेसिकली उनको बढ़ाने के लिए, उनकी लाइफ भी बढ़ाने के लिए और उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए भी काम आता है। इसके अंदर एक प्रोडक्ट है बैसिलस कोएगुलेंस IS2। ये बेसिकली क्या करता है, ये ना दूध से बनता है ना, फटा हुआ दूध से। इसकी खासियत क्या है कि जब आप इसको इस तरह से देखिए, अगर आपके घर पे गेहूं का दाना है, क्या गेहूं के दाने से आप प्लांट बना सकते हो डब्बे में रखे हुए? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपने उसको एक सही जगह पे डाल दिया, मतलब बो दिया, और फिर उसको अच्छा वातावरण दे दिया, मतलब उसको पानी दे दिया, खाद दे दिया, तो उसी गेहूं के दाने से पेड़ निकलना चालू हो जाएगा, मतलब पौधा निकलना चालू हो जाएगा, और फिर वो एक दाना कई दाना देगा। बराबर है। उसी तरह से ये जो प्रीबायोटिक है न्यूट्रीलाइट का, ये क्या करता है कि सही जगह पे जाके काम करता है। जैसे ही ये सही जगह पे जाएगा, ये ग्रो करना चालू करता है और अपना काम चालू करता है प्रोबायोटिक। आप मेरी बात साथ समझ गए हो, है ना। ये किसी और में नहीं है बेनिफिट। क्योंकि क्या होता है कि समझो कि अगर मैं प्रोबायोटिक खाने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे खाना है, लेकिन सपोज हिंदुस्तान में किसी जगह पे 50 डिग्री टेम्परेचर है, ये वहां पर जिंदा रह ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोबायोटिक को हम हमारे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उनकी लाइफ है, और हमारी बॉडी टेम्परेचर कितना, 36-37 डिग्री। उससे अगर ऊपर गया तो वो उनकी पॉपुलेशन कम होने लगती है, मरने लगते हैं एक हिसाब से। तो इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो सही जगह पे जाके वहीं पर जाके फिर अपना काम चालू करे, जिसकी वजह से क्या होगा, अगेन सेम चीज, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, आपका प्रोटीन और कार्ब को डाइजेस्ट करने के लिए काम आएगा, आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, है ना। यही सारे बेनिफिट इससे मिलते हैं। अब फिर आगे, जैसे कि हमने बताया था कि तीन चीजें इसके लिए जरूरी है, प्रोटीन, फाइबर और प्री एंड प्रोबायोटिक। तो ये तीनों चीजें हमारे पास है। ये तीन चीजें आपको अगले 10 दिन पूरी तरह से इसके साथ में आना है, तो आपको मैक्सिमम इसका बेनिफिट। देखो कई बार ये होता है ना कि हम क्या चीज निकाल दें लाइफ से, लेकिन लाइफ से वो चीज निकाल दोगे तो जरूरी नहीं कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। अब सपोज मैं किसी बच्चे को बोलूं कि भैया तू खेलता बहुत है ना, तो खेल मत, अगर एग्जाम में तुझे पास होना है अच्छे मार्क्स से तो तुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो सोचो कि उसने सिर्फ खेलना बंद कर दिया लेकिन पढ़ाई चालू नहीं करी, तो उसको मार्क्स आएंगे एग्जाम में अच्छे? बिल्कुल नहीं।
तो उसे कुछ चीज लाइफ से निकालनी पड़ेगी और कुछ चीजें लाइफ में उसके डालनी पड़ेंगी, जिसके वजह से उसको उसका पूरा बेनिफिट मिले। तो उसी तरह से कुछ चीजें आप निकालोगे लाइफ से, जो हम आपको बता देंगे आस्ते आस्ते, और अभी थोड़ा बहुत बता दिया है, और कुछ चीजें आप ऐड करोगे। तो ये चीजें अगर आप ऐड करोगे तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी आपके गट रिसेट प्रोग्राम में। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको आपका प्लेट डिजाइन करने को सिखाया जाएगा। यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल है। हिंदुस्तान में बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है ये, बहुत अलग अलग तरह के खाने हैं, अलग अलग तरह के वातावरण है, अलग अलग तरह के मौसम है एक ही समय पे अलग अलग जगह पे। लेकिन फिर भी आपको एक प्लेट डिजाइन करने दिया जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि आप 25% आप अपना प्रोटीन रखिए, 25% आप टोटल खाने का आप कार्बोहाइड्रेट रखिए, और 25% आप टोटल खाने का अपने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट रखिए, जिसको हम बोलते हैं कि फाइबर और विटामिन एंड मिनरल्स रखिए। अगर आप ये करोगे, प्लस बाकी जो चीजें आपको बताई जाएंगी आस्ते आस्ते जो बताई गई है वो करोगे, आपको इफेक्ट 10 दिन से ही मालूम पड़ने लग जाएगा। और इनफैक्ट दूसरे तीसरे दिन से पता चल जाएगा। अगर आपको दिखे कि आपके अंदर कोई भी बदलाव आ रहा है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट नेगेटिव, उसको नेगेटिव मत समझिएगा, ये समझिएगा कि कुछ बदलाव आ रहा है जो होना चाहिए। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए इसके इन इन चीज़ों के अंदर, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हेल्दी चीज़ खानी है, हमें टाइम पे खाना है, हमें अच्छी तरह से खाना है, मतलब माइंडफुल ईटिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, चबा चबा के खाना है। हमें फ्रेगमेंटेड फूड अपने खाने में ऐड करना है। तो आपको पूरी तरह से बताया जाएगा और बताया गया है कि क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये 4 चीज़ें। ओके, आपको एक्सरसाइज करने को कहा जाएगा, आपको बताया जाएगा किस तरह से आपको स्ट्रेस कम करना है। नेक्स्ट, क्या नहीं करना है आपको, आपको रिफाइंड शुगर नहीं खाना है, आपको जंक फूड नहीं खाना है, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, आपको दारू नहीं पीना है, अल्कोहल नहीं पीना है। ओके आपको मसालेदार खाना नहीं खाना है 10 दिन के लिए, कैफीन नहीं पीना है, मतलब कॉफी वगैरह, कॉफी चाय दोनों प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। ओके, और कैलोरी डेंस फूड नहीं खाना है, नॉन वेज नहीं खाना है, टीवी या मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम करके बेड टाइम को थोड़ा बढ़ाना है, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। और जैसे कि हम कहते हैं कि आइए शाइन करते हैं, शाइन करना मतलब ये कि हर दिन हर सुबह एक ग्रेटिट्यूड के साथ शुरुआत करें, हमेशा न्यूट्रिशियस फूड खाएं, आपको लाइफ में क्या चाहिए एक क्लियर विजुअलाइज इंटेंशन रखें, कुछ नई चीजें सीखें रोज, और एक्सरसाइज रोज करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुचिता। Thank you, Manoj, for amazing explanation. I think आपने बहुत ही simplify कर दिया सबके लिए समझना कि हमें गट रीसेट करने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है। एंड आई वुड लाइक टू रिमाइंड कि जिनको भी कोई भी डाउट्स हो, प्लीज गेट बैक टू योर हेल्थ कोचेस, एंड हम सब लोग एक साथ आफ्टर दिवाली एक गिल्ट फ्री गट रीसेट करते हैं, सो दैट वी कैन गेन बैक द कंट्रोल ऑन आवर हेल्थ। And I see no hands raised, so no questions. With that, let's close today's session and see you in the next one. Thank you. Stay safe.